इस सम्मेलन में शरीक होने का मौका देने हेतु मगध विश्वविद्यालय के आयोजनकर्ता और विशेष रूप से एसपी साई जी का धन्यवाद देता हूँ। आज के इस सम्मेलन के मुख्य विषय है भारत 2047 सतत एक विकसित अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास एवं सतत विकास की रणनीतियां, जलवायु परिवर्तन को कम करना एवं क्षेत्रीय आर्थिक विकास एवं असमानताएं, ये आज के इस आर्थिक जो हमारा सम्मेलन है इसका मुख्य विषय है। I must congratulate the organizer that they have selected the most pertinent topic which are important for the policy maker across India. And what better place than Bihar to discuss these issues which under the dynamic leadership of our visionary Chief Minister, Mr. Nitish Kumar, has successfully become one of the states having the highest growth rate after being affected with the tag of Bimaru state for a long time. The cross-state domestic product of Bihar has increased at an annual growth rate of almost more than 11% in last decade. The state which has used to consume 700 megawatt till 2005, last month locked 8,005 megawatt record consumption in one day. The state, I have cited the above example only to emphasize on the point that to make India a developed nation. All states have to move ahead on the development agenda, a development which is inclusive, sustainable and people-oriented. I have been a student of political science. We define governance as the process of decision-making and the process by which decisions are implemented. Our chief guest today, Mr. Nitin Gadkari ji, has been a champion of the effective and efficient execution of government projects. He is affectionately called the whole world, the whole India, expressly man of India. Mumbai-Pune highway was not just one example of his famed execution skill. Wherever in 2015-16, India were constructing 6,000 kilometers highway. In 23-24, India is constructing his leadership 12,349 kilometers of highway. That shows how a man can change the whole policy by his execution. माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को $5 ट्रिलियन की विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। मैं इस मानकों को देख रहा था। अक्टूबर 2024 में एक दिन में भारत ने 5,05,000 यात्रियों ने विमान से यात्रा की है। केवल डायरेक्ट टैक्स से 22,60,000 करोड़ रुपया से ज्यादा वसूली होने का इस बार अनुमान है। स्मार्टफोन प्रोडक्शन लिफ्ट स्कीम से 1,10,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। सितंबर 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम 20.63 लाख करोड़ रुपया का था और विदेशी मुद्रा का बिहार का भंडारण आज $690 मिलियन है। मैं इन विषयों की चर्चा इसलिए किया क्योंकि कोविड की महामारी के बाद जहां पूरी दुनिया उनके वैश्विक दुष्प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाई है, वहां भारत आर्थिक क्षेत्र में बड़े देश में जगमगाता नक्षत्र के रूप में उभरा है। एवं IMF ने भी 2027 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की उम्मीद जताई है। सभी अर्थशास्त्री मानते हैं देश के विकास के लिए मजबूत आधारभूत संरचना का निर्माण अनिवार्य है। आधारभूत संरचना के विकास की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यकाल बिहार का स्वर्णिम कालखंड रहा है। सड़क विकास की धमनियां मानी जाती है। आज ग्रामीण विकास विभाग ने इस प्रदेश में 1,70,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया है और हमने 250 आबादी की सभी बसावटों को एकल संपर्क देने का काम किया है। और अब हमारी कैबिनेट ने, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 बसावटों को भी एकल संपर्क देने का निर्णय किया है। 2005 में यह बिहार मात्र 24,000 करोड़ के बजट का बिहार था और 18-19 वर्ष के माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शिता से और उनके वित्तीय प्रबंधन से आज बिहार 2,80,000 करोड़ के बजट का बिहार है। Regarding the second topic, India is forming the better on the various parameters of sustainable development goals of United Nations. We believe in Mahatma Gandhi's principle of trust
Honorable Chief Minister, Jal Jeevan Hariyali program is proving to be one of the best initiatives in the field of sustainable development. The various methods of governance of Government of Bihar, starting with the Sushashan ke कार्यक्रम and then gradually with the concept of न्याय के साथ विकास, later made stride with 7 Nishchay 1 and 7 Nishchay 2. Honorable CM initiative for equitable and just development for every stage of society has led to empower for women, SC, ST, EBC and minority and persons from the marginalized section of the society in his reflection figure. New universities of medical sciences, sports and engineering, 189 centers of excellence in polytechnic, ITI in every nook and corner of Bihar, more than 5 lakh jobs, 35% reservation into women in the government job, reservation in Panchayat Raj institutions, students credit card to economically weaker sections, higher percentage of girls appearing in class 10 and 12 examination is the list of Bihar who is improving towards the development. सरकार के साथ निश्चय 1 एवं 2 के विकास के अवयव को समाहित एक संपूर्ण विकास की अवधारणा को अभिव्यक्त करने का प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से युवा शक्ति को शिक्षा उद्यम के क्षेत्र में समर्थवान बनाने का काम किया गया है। आप सबके लिए यह शोध का विषय होना चाहिए कि भारत एवं बिहार की विशेष स्थिति के अनुरूप खास करके इस देश के व्यापक विविधताओं को देखते हुए कस्बावार, जिलावार, क्षेत्रवार योजनाओं का बनाना, उनका एक्सक्यूशन करना और उनका इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज कैसे किया जाए। आज हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना हो या माननीय मुख्यमंत्री महोदय का देश की हर थाली में बिहार का व्यंजन का सपना हो, सभी का सकारात्मक स्वरूप दिख रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आपके शोध के निष्कर्षों को जन साधारण हेतु उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज कृषि के क्षेत्र में लैंड टू लैंड के प्रयासों का नतीजा है कि बिहार पिछले 5 वर्षों से देश का सबसे बड़ा कृषि के क्षेत्र का कृषि क्रमण पुरस्कार प्राप्त कर प्रोडक्शन रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। हम इक्विटेबली यूनिवर्सल इनकम जनरेटिंग इको फ्रेंडली रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम करने वाला सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल के अनुरूप विकास के नए मापदंड करने के लिए अग्रसर हैं। अंत में हम माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विचार है कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, सदैव अटल जी का वक्तव्य है एम्पावरिंग द इंडिविजुअल मींस एम्पावरिंग द नेशन एंड द एम्पावरमेंट इज बेस्ट सर्व्ड थ्रू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रैपिड सोशल चेंज। माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य, बाबा साहब अम्बेडकर का पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के पूर्व इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी पाने का लक्ष्य एवं बापू का डिजिटलाइज इकोनॉमिक सिस्टम की परिकल्पना, यानी इन सभी विचारों का संगम को हमारे विकास का रोड मैप होना चाहिए और उससे हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। आपका लक्ष्य इसी रूप में लाइन होना चाहिए। हम अंत में पुनः अपने आयोजनकर्ता और मगध विश्वविद्यालय के साथ साथ भारतीय आर्थिक परिषद को धन्यवाद देते हैं कि भगवान बुद्ध की इस जगह पर इन्होंने बिहार के इस